کے ساتھ ہو؟ آئے ہم عبادت کا آغاز شاعربانی کی ترتیب کی کتاب میں سے کریں۔ اے قابل مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر تاکہ ہم تجھ سے قابل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ اے قدوس خدا، 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 سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں ہم کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خدا یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ میں نے تو چھانے والوں کو بہت سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب سب سے جب اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستقیم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خداوند کی ہم دو تعریف کریں گے۔ سیالکوٹ کے لنچن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 99 خداوند کی مدد سرائی میں ہم گائیں گے۔ سیالکوٹ کے لنچن گیتوں کی کتاب گیت نمبر زبور نمبر 99 یہوہ راج آپ کرتا ہے، کل لوگ منامنڈر وہ کروبیم سے بیٹھا ہے، کمبے زمین کرتا ہے۔
दिनों में आइटम जो डेली रोना है उसमें हम तो अपने लोगों में अब हम सब लोग याद करते हैं जो मेरे नाम लेने की वजह से सताए जाते हैं अब हम विधायक और कॉन्फ्रेंस का इंतजाम हो जाए अब हम अपने लोगों को पास बना मेरा इसलिए आपको इस इलाके को हम जहाँ से लोग रहते हैं इसकी हिफाजत और निगरानी की तरफ से वो अब हम तो ये अपने लोगों को जो बर्बाद नहीं है जो फसल बच्चा है अब हम उसके लिए शुक्रगुजार है अब हम जो इस हेक्टर को तेरे सामने रखते हैं इसकी जगह को तेरे सामने रखते हैं इसका इंतजाम चलाने वालों को सामने रखते हैं अब हम जो इसकी दिन रात खिदमत में मांग है उनके साथ तो अब हम जो लोग अपने अत्याचार जो अपनी खुशी से जान देते हैं अब हम यकीन करते हैं कि वो एकदम अच्छे और आसान तरीके से इस्तेमाल होता होगा हर तरह के लोगों को बरकत दे अब हम स्टडी स्कूल का इंतजाम चलाने वाले जो असातिज़ा हैं जैसे उनको तेरे सामने रखते हैं गुलाम करने वाले महकार को तेरे सामने रखते हैं दुकानदार को तेरे सामने रखते हैं उन सब को आप तेरे सामने रखते हैं उनको अपनी मान रख आप वक्त अजीज को आप सामने रखते हैं जिसको हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी प्रकार से महफूज रख जहाँ पे आप हमें तेरा नाम लेने की आज़ादी है इसके लिए तेरे दहाई की शुक्रगुजार है आप उस मुल्क का इंतजाम चलाने वालों के फकत दराई सहम जाओ बाप से आप जो मौजूदा हालात चल रहे हैं जो बदलनी के फजा मरूज का है उसको अपना तो अपने लोगों की हिफाजत कर अपने अजीज को दे अपना महफूज रख जो गरीबी पत्रात है उनकी पत्रात है उनसे महफूज रख अब वो लोग जो हमारी हिफाजत में मामूल हैं पाक फौज आर्मी रेंजर्स पुलिस और जो इंतजामिया को सबको तेरे सामने रखते हैं आप तो अपनी सब मनोरंजन को तेरे सामने रखते हैं माँ का नाम लेके आमीन।
बच्चों ने बड़े बड़े नंबर लिए, जिन्होंने लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लिए, जिन्होंने नहीं ली बहुत कम लिए। कोरोना की वजह से कुछ को फायदा हुआ, कुछ को नुकसान भी हुआ है। हम बच्चों के लिए दुआ करें ताकि इन्हें कॉलेजेस में दाखिले मिल सके। इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हम सब पर रहम किया है। डॉक्टर साहब ने डेंगू के बारे में जो दुआ में खास किया, इसके लिए हमें लगातार मुसलसल दुआ करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग डेंगू बुखार में मुब्तला है। मीरम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसके गले का ऑपरेशन हुआ, खुदा ने सेहत खुदा को सिद्धा फरमाया। हम अपने भाई बूटा बुलेट के लिए भी उनके ख़ानदान के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। उनकी मिसेस एग्नेस पिछले दिनों खुदा ने सो गई हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदा उन्हें अपना इत्मीनान अता फरमाए। हम उन लोगों को दुआ भी याद करते हैं जिन दिनों परेशानी की हालत में हैं ज़लज़ले की वजह से। हमारे मुल्क में जिन दिनों एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं, आवाम को मुश्किलात हैं, मौजूदा हुकूमत के लिए दुआ करें। लोगों के लिए एक दानिश पैगाम दें ताकि इस दुनिया में रहते हुए दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात पैदा न करें। कोई भी दुआ कर सकता है। उन बच्चों के लिए भी दुआ करें जो बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी जो बैरून मुल्क है। खुदा उन्हें अपनी बना करें। कोई भी दुआ कर मैं फजल करने वाला खुदा है। तो दुनिया जहान का खालिक मालिक पैदा करने वाला रही तमाम तरीके दे दी। इस वक्त हम तेरे सामने पेश होते हैं। तुम्हारी नाम गलतियों को बख्श देना, माफ़ कर देना, नेकी और कीर्ति की राहों में चलाना। आप चला खुदा मोबाइल के लिए, इस खूबसूरत गीत के लिए भी तेरा शुक्र जाते हैं। जिन लोगों ने ये गीत लिखे उनके ख़ानदानों के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा खास तौर पर जिन बच्चों ने मैट्रिक और एफएससी में अच्छे नंबर लिए, कामयाब हुए, उनके लिए भी तेरा शुक्र करते हैं। आने वाले वक्तों में खुदा उनको और कामयाबियाँ देना, खुदा इनको माँ बाप की इज्जत करना सिखाना है कि दिलों में अपना खौफ डालना। खुदा हमारे मुल्क में इस्लाम की बढ़ के हर तरह की दहशत गर्दी, शैतान की चलाकी, करप्शन, बीमारियाँ तेरे नाम से जाती हैं। हमारे मुल्क का इंतजाम चलाने वाले के साथ हो, उनको अक्ल दिलाई फहम दे ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, इसमें खुशहाली है। खुदा मेरे बंदा ने जितनी दरख्वास्तें हमारे जाती तेरे सामने रखी हैं, खुदा उनको तो सुनना और कबूल करना, तो हमारी रहनुमाई करना, इबादत की शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहना। आज का कलाम पेश किया जाए वो हम सब के लिए बाइस बरकत हो, हम तेरे नाम में बढ़ते रहें। खुदा हमारी रहनुमाई करना, अब से बेशक हमारे साथ में पूरी दुनिया में जन कहीं तेरे नाम से तेरे लोग तेरी इबादत के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनको भी अपनी बरकतों से मालामाल करना। तेरे की बरकत चाहते हैं कि तेरे लोग इस वक्त तेरे घर में मौजूद हैं, एक एक को बरकत देना, एक एक को जो गमदद हैं उनको सभी देना, जिनको तुमने खुशियाँ दी हैं उनकी खुशियों को बहाल करना। हमारी रहनुमाई कर, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे हमारे हम जिसम मसीह के वसीला से, आमीन। हमने रखी है। मैं हमेशा पुरानी बाइबल और नई बाइबल का हवाला देता हूँ, पेज बताता हूँ। इस बाइबल को खोले, आपके लिए देखनी हमने। आज का पहला दिन यिर्मयाह नबी का सहीफा। कलाम को खोला करें, पढ़ा करें ताकि आप घर जाके भी देख सकें। खूबसूरत आयात है। एपिस्कोपल सिस्टम में जहाँ कहीं भी बिशपी निज़ाम है, पूरी दुनिया में ये हवाले पढ़े जा रहे हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा 31वां बाब, यिर्मयाह चैप्टर 31 7 to 9, 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। जो पुरानी बाइबल आपके सामने पड़ी है, सफ़ा नंबर 745, 745। जो नई बाइबल है उसमें सफ़ा नंबर 960 है, जिसे शकीला स्पेसिफिक की तिलावत करेंगे हमारे लिए। यिर्मयाह नबी का सहीफा 31वां बाब, 7वीं आयत से 9वीं आयत। सदी से खोल दें। आज का दूसरा दिन इब्रानी के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत, 5वां बाब, पहली आयत से 6वीं आयत तक। जो आपके हाथ में बाइबल है सामने पड़ी, पुरानी बाइबल सफ़ा नंबर 214 to 14। जो नई बाइबल है उसमें सफ़ा नंबर 302 302। इब्रानियों का खत है, 5वां बाब, पहली आयत से 6वीं आयत।
जो बच्चे FA, FSC, मैट्रिक में पास हुए और आप किसी को पढ़ना चाहे वाला तो उसके लिए मौका है। आज दिखा दें किसी का भी, शाबाश। आज का तीसरा विरत मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील 10वां बाब 46वें आयत से लेकर 52 आयत तक, 46 to 52। पुरानी बाइबल में सफा नंबर 45, 45 और नई बाइबल में सफा नंबर 66, 66। मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान 10वां बाब 46 से 52 आयत को पढ़ना चाहता है। दोनों हवाले भी किसी ने नहीं लिए, ना आप फोन करते हैं, ना आप कहते हैं, ना बताते हैं, फिर किसी कोई लोग पढ़ते हैं जो आमतौर पे पढ़ते हैं और फिर आप कहते हैं जी हमें मौका ही नहीं मिलता। ठीक है बेटा, आप पढ़े। दूसरा वाला इब्रानी का। तीसरा वाला इंजील मुकद्दस का है, तो पढ़ना चाहता है आप पढ़ेंगे? कौन पढ़ेगा? चलिए ठीक है, वो पीछे दिखाइए। ठीक है, आप पढ़ेंगे। थैंक यू। आपने सामने आके पढ़ना है इंजील मुकद्दस का हवाला, मुकद्दस मरकस का इंजीली बयान। बाहर जाके आप कहते हो जिस साल मौका ही नहीं मिलता, पाकिस्तान में 2-4 लोग रखे हैं आप, इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सक्की साहब आजे, अभी तो 2 बच्चे हैं, कोई और बच्चा है तो आजे, बाद में ना कहना। अगला साल आपके चर्च का गोल्डन जुबली साल है। कौन सा? 50वां साल। 1972 में ये चर्च शुरू हुआ था, तो 72 में 25 साल मिला दें तो 97 बनता है, 25वां। ठीक है, वो 25वीं सालगिरह भी हमने यहाँ मनाई थी। हमने सिल्वर जुबली बनाई थी। अब हम गोल्डन जुबली मनाएंगे और क्रिसमस से शुरू कर देंगे। एक बेहतरीन सा कैलेंडर हम बनाएंगे इस 50 साल जुबली का। अगर आप में से किसी के पास पुरानी तस्वीरें और जब ये चर्च शुरू हुआ था, मेरे पास है कुछ, क्योंकि 25 साल जुबली भी हमने करवाई थी यहाँ पे जब मैं इधर था, तो कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं। अगर आपके पास कुछ पुरानी तस्वीरें हों जिनको हम उसमें ऐड कर सकें, फिर बाद में ना कहना। अगर आपकी अपनी तस्वीरें बुनियाद करते हुए, काम करते हुए, बहुत सारी खवातीन ने, बहुत सारे नौजवान लोगों ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने यहाँ पे काम किया। चंद एक बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं। अगर आपकी कोई उस दौर की तस्वीर हो जहाँ आप काम कर रहे हो, यहाँ खड़े हो खुले प्लाट में, हम वो तस्वीर लगाएंगे और वो जल्दी अगले इतवार तक मुझे दे दें। हम जल्दी से ये एक कैलेंडर, खास कैलेंडर जो 50 साल जुबली का होगा बनाएंगे। फिर हम 50 साल एक्टिविटीज़ करेंगे अगले साल में। इस साल 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम होगा वो गोल्डन जुबली प्रोग्राम में होगा। ये 3 बच्चे रह गए थे, पिछले तो नहीं आए थे। पुराने बुजुर्ग हों जो 50 साल जुबली वाले प्रोग्राम, ठीक है, आ जाए और इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, तालियां दें। मास्क उतार के तो खुश हो के मुस्कुरा के दिखा दें। शाबाश, बहुत बहुत मुबारक। कोई बात नहीं, जितने यहाँ दे दे, बाकी रहने बाकी मुझे दे देना यार, छोड़ें। उसी में आप सबको सलाम। भाई साहब, बाद में तो मुझे क्या कहते हैं कि बच्चे हमारे पास में आए हैं। आज आखिरी दिन है, 20 आपसे रिक्वेस्ट है, जो रह गए शबाब आपका बड़ा काम है, वो नहीं है। जो रह गया बस। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब आप आए सामने। डॉक्टर साहब के लिए, मिस्टर सैमुअल साहब के लिए तालियां बजाइए। हमारे बुजुर्ग हैं, ये खड़े हैं। डॉक्टर साहब हमारे लिए आप सब बच्चों को अच्छे नंबर लेने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू। तालियां कोई नहीं है।
आज की दूसरी तिलावत यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा 31वां बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत तक। क्योंकि खुदावंद यूँ फरमाता है कि यकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सर ताज के लिए ललकारो। मनादी करो, हम करो और कहो, ऐ खुदावंद अपने लोगों को यानी इस्राएल के बकिया को बचा। देखो मैं शमाली मुल्क से उनको लाऊंगा और ज़मीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा और उनमें अंधे और लंगड़े और हामला और जच्चा सब होंगे। उनकी बड़ी जमात यहाँ वापस आएगी और वो रोते और मनाजात करते हुए आएंगे। मैं उनकी रहबरी करूँगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ राय रास्त पर चलाऊँगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे। क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूँ और इफ्राहीम मेरा पहलौठा है। खुदा उनका पाकलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत है। आमीन। उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुज़राने, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमज़ोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फ़र्ज़ है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुज़राने उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज़्ज़त इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार कायम होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तो मुझसे पैदा हुआ। चनाचे वह दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मुल्क सिद्दीक़ के तौर पर अबद तक कायम है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। True.
हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब 46वीं आयत से 52 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूब है, और वो यरूशलेम में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरूशलेम से निकलती थी, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था, और यह सुनकर कि यीशु नासरी है, चला चला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चलाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। बस उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ऐ रब्बूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो गया। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस आमीन। ईमान एक खुदा सब बोले और एक खुदा यीशु मसीह पर जो खुदा का बेटा है, से बेशतर अपने आप से मौजूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मासूम नहीं बल्कि मौजूद, उसका बाप का एक ही जोहर है। उसके वसीला से कुछ चीजें बनी, वो महामानव के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और वो रूप से हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और उसके आहद में हमारे लिए मसलूबी हुआ। उसने उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन मरीजों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिराने वाला है। उसकी सल्तनत होगी, और मैं ईमान रखता हूँ और उस पर जो खुदावंद और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से साजिद है। उसी बाप और बेटे के साथ परस्तिश और ताज़ीम होती है। वो नबी की ज़ुबानी बोला, मैं एक बार आम सुली ईसा पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मा जो गुनाहों की माफी के लिए है करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने गुजरे वक्त में हमारी मदद की, क्वायत को, इन साजों को, हम सबको, हमारे गलों को अपनी जलाल पे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। अब हम सब तेरा कलाम सुनने के लिए तैयार हैं, तेरे पाक की रहनुमाई चाहते हैं। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, हमारे ख्यालात और जगह निकल जाते हैं, हमारी ध्यान, हमारी तवज्जो दूसरी तरफ चली जाती है, लेकिन तुझसे इल्तिजा, फरियाद, मिन्नत करते हैं। कलाम मुक़द्दस की ये सच्चाइयाँ हम सब के लिए बरकत का सबब क्या है। तो अपना हाथ बढ़ा और अपने खालिद के मुंह में भी अपना कलाम दे। खुदा भेजे और उसके नाम से जमाए बैठ जाए। खुदा का खालिद होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम करता हूँ, और आप सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आप सबकी मौजूदगी के लिए, आपके खुदा के घर में आने के लिए, और उन सारी बरकतों के लिए जो खुदा ने आपको सबको दी है। औलाद जैसी नेमत, बच्चों के पास होने की नेमत, घर बनाने की नेमत, बच्चों की शादियाँ, मंगनियाँ, सब ये सारी चीज़ें मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए खुदावंद अता करता है। हर अच्छी नेमत खुदा की तरफ से मिलती है।
मलाउन है वो शख्स जो किसी बशर पर तवक्कल करता है। बशर पे ना तवक्कल करे, खुदा पे तवक्कल करे। देना शुरू कर दे, आना शुरू हो जाएगा। वो खा इज्जत हो या रिस्क हो, दे शुरू तो करें, देखें फिर कैसे आता है। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बरकत का सबब है। क्वायर के लिए तालियां बजाए, बड़ा खूबसूरत गीत गाया है। और इसी पापू की वसीला से इस वक्त हम इन तीनों हवालों पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह जब यरीहो की तरफ जाती, ये ऐसा शहर था, ऐसी जगह थी जहां पे बनी इस्राएल भी आकर रोके थे, डरते थे आगे जाने के लिए। और फिर आपने की सुना, यरीहो की दीवारें सारी गिरती जाती थी। अपने लोगों के लिए अगर कोई इंसान आपको छोड़ दे ना, आपकी मदद करना, आपकी हौसला अफजाई करना, ना घबराया करे। वो खुदा नहीं वो छोड़ता मुझे। कहता ना, मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, एक दर बंद हो तो 100 दर खुल जाता है, खुदा खोल देता है। और यरीहो ऐसी ही जगह थी। और खुदा के कलाम में लिखे कि जब खुदा यीशु मसीह वहां जा रहे थे, दाखिल हो रहे थे, एक ऐसा शख्स जो अंधा था, देख नहीं सकता था, उसे पता चल गया कि यीशु से यहां से गुजर रहे हैं। जिस तरह पढ़ा गया ना, इस तरह भी ये खुले जरा यह वाला मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया था। अंधा फकीर था, मांग रहा था, राह के किनारे बैठा हुआ था। ये सुनकर उसके कानों में ये आवाज आई कि यीशु नासरी है, खुदा का बेटा यीशु मसीह है, यहाँ से गुजर रहा है। खुदा के कलाम में लिखे हैं, उस संधे फकीर ने जो मांग रहा था, ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चला कर कहने लगा, चिल्ला ऊंची आवाज में चीखे मार के चिल्ला चला कर कहने लगा, इब्न दाऊद, आए यीशु मुझ पर। तब रहम हुआ था उसके अंदर से, उसके ये दुआ ली, अंदर से ये चीख निकली थी। वो नहीं चाहता था कि वो वहां बैठ के मांगे। हर शख्स की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, मेरी भी और आपकी भी, हम इसका ख्याल रखते हैं। और मैं अक्सर कई दफा लोगों से कहता हूँ, खुददारियों में हद से गुजर जाना चाहिए। खुददार होना चाहिए बंदे को, खाब मजहबी लीडर है, सियासी लीडर है, घर में है, खानदान में है, रिश्तेदारों में है, बरादरी में है, खुददारियों में हद से गुजर जाना चाहिए। इज्जत से जीना पाए तो फिर मर जाना चाहिए। इज्जत से जीना पाए तो फिर मर जाना चाहिए। फिर जिंदगी ये जो आपकी है, इज्जत की अगर नहीं है ना तो छोड़ दे इसको, इज्जत से रहे। ये शख्स इज्जत से जिंदगी उतारना चाहता, नहीं मांगना चाहता था, लेकिन देख नहीं सकता था, घर वालों के लिए बोझ था। घर वाले शायद उठा के वहां बिठा जाते थे कि चल सारा दिन मांग और शाम को भोज के लिए भी कमाता था। उसको चिल्लाया यीशु मसीह के आगे, किसी शख्स के आगे नहीं। लोगों ने मना किया। आजकल भी ऐसा होता है, जब कोई बड़ा शख्स आता है ना, लीडर, वज़ीर आज़म, मिनिस्टर, कोई बिशप या कोई बंदा ऐसा, तो जो साथ होते हैं ना वो पीछे कर देते लोग, पीछे हट जाए, साइड में हो जाए, चलो छोड़ दे, मिलने नहीं देते, ऐसे ही इसको कर देता। हालांकि वो शख्स जो आया वो मिलना चाहता है लोगों को, वो शख्स दूसरों के साथ मिलना चाहता है, लेकिन लोग उसको हटा देते हैं। इस शख्स को भी उन्होंने ऐसे किया, उसको डांटा। क्यों? माशरे में इसकी इज्जत नहीं थी, मांगता था तो लोगों ने ऐसे ही है। लेकिन यीशु मसीह की नजर में वो वीआईपी बंदा था। खुदावंद यीशु मसीह की नजर में वो शख्स अहम था, दूसरों से कहीं अहम था। अब अपने आप को ज्यादा अहम ना समझा कर, मैं नहीं समझता। मैं कई दफा किसी मीटिंग पे बैठा होता तो मैं ये बात जरूर उनको कहता हूँ, मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था, ये मेरा वहम था, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो खास भी नहीं, मुझे तो मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मुझसे अहम और थे, और मुझसे कई ज्यादा अहम जाके कब्रिस्तान में देखे पड़े खाक। इसलिए
इसमें मेरी और आपकी क्या बात है? इस शख्स को वो लोग अहम नहीं समझ रहे थे ना। आम शख्स, गरीब, मांगने वाला, देख नहीं सकता था, उसको डांटा कि तू क्यों शोर कर रहा है, यीशु से यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन उसने उस वक्त उनकी बात नहीं मानी, और ज्यादा चिल्लाया, शोर किया उसने, ताकि मेरी आवाज मसीह के कानों तक पहुंच जाए। ऐ दाऊद, मुझ पर रहम। आज की दुनिया, आज के लोग मैं और आप रहम के काबिल हैं नहीं? बोले बोले कह रहे, मैं और आप, आज की दुनिया, आज के लोग रहम के काबिल हैं। मुझे और आपको खुदा के रहम की जरूरत है। क्यों कह रहे? जो हालात हैं, आलूदगी जिस्म जान की, रुकी दूर कर दे, खौफ यहोवा कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। धो मुझे, धो खुदा रू मुझे धो। मुझे आपको धुलने की बड़ी जरूरत है। आलूदा है हम लोग। टेलीविजन देखा करें, आपका शहर, लाहौर शहर सारे शहरों से ज्यादा आलूदा है। बड़ी आलूदगी है यहाँ, बड़ी गंदगी है यहाँ। ऊपर भी है, हमारे अंदरों में भी बड़ी है। ना माने आपकी मर्जी है। आलूदगी जिस्म जान की, रूह की दूर कर दे, खौफ यहोवा कामिल, पाकीज़गी से तू भर दे। धो मुझे, धो पाकरू मुझे, धो ताकि मैं पाक हो जाऊं, साफ हो जाऊं, आलूदगी खत्म हो जाए। और वो शख्स जो मांगता था, वो यीशु से कहता है कि खुदा को मुझ पर रहम कर। आप रहम मांगा करें इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने इलाके के लिए, इस शहर के लिए। जब यीशु के कानों में ये आवाज गई, यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। ये आवाज किसके बुलाई से? बस उन्होंने अंधे को ये कहकर बुला के खातर जमा, उठ, वो तुझे बुलाता है। जब तक आप उठेंगे नहीं, सुने, जब तक आप उठेंगे नहीं, आपको हुकूक नहीं मिल सकते। इस दुनिया में रहते हुए, इस मुल्क में रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, जहां आलूदगी भरी पड़ी, पाकीज़गी है नहीं। यीशु ने कहा बुलाओ भाई। उन्होंने कहा चल जमा रख अपनी खातर, खुश हो जा, यीशु तुझे बुला रहा है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आ गया। उसे कोई परवाह नहीं, कपड़ा उसका खा गया, भाग गया है यीशु के पास। वो पुरानी इंसानियत छोड़ दी, इसने तर्क कर दी। मैं बच्चों को इसलिए कह रहा था कि ये ना समझ लेना कि बड़े नंबर आ गए हैं, आगे पढ़ना। हमारी जो फितरत है वो ये है कि इस दफा नहीं ज्यादा नंबर आ गए ना, फिर हम कहता हूँ मेरे बड़े नंबर आ जाते हैं, घर में तो पढ़ा भी ना आते आ जाते हैं, तो फिर डाउन हो जाते हैं, फिर आगे मेडिकल में नहीं जाते जिनकी ख्वाहिश होती है। इसलिए बच्ची की हौसला अफजाई करना चाहो, पढ़े, अब भी काम है और ज्यादा पढ़े। जब मैं सिफारिशी करता हूँ एफसी कॉलेज में, कैडेट कॉलेज में, तो वो मुझे पता क्या था, और वाली साहब इनको गए पढ़ा भी कर इतने नंबर रहे, इतना स्कॉलरशिप भी दे देंगे हम, इतने नंबर लाए इतना स्कॉलरशिप दे देंगे। और जिनके काम होता है ना उनको कुछ भी नहीं देते, फिर हम उनकी मिलते करते हैं, फिर उनको लेकर लिखते हैं। इसलिए बच्चों से कहना चाहता हूँ कि अभी आप सिर्फ एक स्टेप, सीढ़ी का एक स्टेप एक करने पे चढ़े। अभी आप पहले पे पाँव रखे आपने, अभी मंजिल बड़ी दूर है, आगे है मुश्किल। पढ़े, मेहनत करें। इस शख्स ने सब कुछ छोड़ दिया, यीशु के पास आकर उछल पड़ा। यीशु ने उससे कहा तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। यीशु जानता था कि वो क्यों चल रहा है, यीशु जानता था कि वो क्यों आ रहा है, लेकिन उसने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसने कहा क्या चाहता है। उसने कहा मैं चाहता हूं कि मैं क्यों हो जाऊं बीना भाई, ताकि मैं इज्जत की जिंदगी बसर करूं। ऐ रब्बुनी, मैं बीना हो जाऊं, मैं देखना शुरू कर दूं। यीशु ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो फिर और बीना हो गया, राह में उसके सारा कुछ ही छोड़ दिया उसने, दुनियादारी को मांगना तो किस लहरा वादा भी यीशु के पीछे चल पड़ा। अब वो भी ये खुशखबरी लोगों को देने लगा। यही बात
बनी इसराइल के लिए खुदा ने की। उनके गुनाह, उनकी नाफरमानी, उनकी गैर अखलाकी हरकतें, उनकी आलूदगी के सबब से वो लोग तितर बितर हो गए, पूरी दुनिया में चले गए, हाँक दिए गए, पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए। और जो कौम तितर बितर हो जाएगा उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। कमजोर लोग हमेशा मार खाते हैं, कमजोर नहीं होना। जब लोग गाते हैं ना दिल का मैं कमजोर, मैं गाओ रहना तो यार ये मेरे सामने ना गाओ, ये गाओ मजबूत मेरा दिल है, शुक्र ते नाल गावा, तारीफ अपने रब दी ते हमद मैं सुना। क्यों कमजोर है? खोले इस यिर्मयाह नबी का सहीफा, वहां खूबसूरत बातें चंद लिखी हुई हैं। यिर्मयाह एक ऐसा खुदा का बंदा, ऐसा खुदा का खालिक, दिल में लोगों के लिए प्यार रखता था, बोलता बड़ा सख्त भी था, लोग उसको पसंद भी नहीं करते थे, कई दफा मुझे भी लोग नहीं पसंद करते, ना करे खैर ऊपर वाला करता होगा, ठीक है। इसको लोग पसंद नहीं करते थे कि ये सख्त बातें कर देता है हमारे लिए, वो गुनाह उनके ऊपर ज़ाहिर करता। मैं जब ये हवाले पढ़ता हूँ मुझे मेरे गुनाह नजर आने शुरू होते हैं, मुझे अपनी सही सूरत शक्ल इसमें से कलाम में से नजर आनी शुरू हो जाती है। फिर मैं अपने आप को कहता हूँ खुदा मैं फिर से असर ना अपने मुंह से अपने गुनाह का इकरार कर। यहाँ पे उन लोगों के लिए खुशखबरी थी जो तितर बितर हो गए अपने गुनाह के सबब से, अपनी खताओं के सबब से, अपनी आलूदगी के सबब से। फिर खुदा का पैगाम यिर्मयाह ने उन्हें दिया। खुदा यूं फरमाता है, याकूब के लिए खुशी से गाओ और कौमों की सर ताज के लिए ललकारो। सर ताज हम शोर को कहते हैं, ये मेरा सर ताज, सर का ताज। इसके लिए गाओ, तारीफ करो, तमजीद करो, मनादी करो, हम्द करो और कहो ऐ खुदावंद अपने लोगों को यानी इस्राएल के बकिया को बचा, जो चंद लोग रह गए हैं और बाकी तो मर गए हैं, फना हो गए हैं, खताओं, गलतियों, कसूरों, नाफरमानी के सबब से। नौजवान बच्चे सुन लें, अगर आप बच्चे पाना चाहते हैं माँ बाप की बहुत इज्जत करें, फरमाबरदारी करें, ताबेदारी करें। इन लोगों ने अपने बाप खुदा की बेवफाई, दगा किया, जिंदा खुदा को छोड़कर बुतों की तरफ चले गए, ऐसी सजा मिली, तितर बितर हो गए। फिर वो मिलते हैं, यिर्मयाह कहता है ये जो बकिया बच गया, थोड़े से लोग रह गए, इनके लिए दुआ करो, ऐ खुदा अपने लोगों को ये इस्राएल के बकिया को बचा। जब ये बात अंदर आ जाती है, इंसान अपने आप को तब्दील कर लेता है, फिर खूबसूरत बन जाता है। आप सबको कहना, आप सब बड़े खूबसूरत हो गए, मैं अपने आप को भी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? हम हैं सारे बड़े खूबसूरत, हमारे रवैये बदसूरत हैं, हम खूबसूरत हैं, रवैये बड़े बदसूरत हैं। इन लोगों के रवैयों के सबब से ऐसा हुआ। फिर उसने कहा गाओ, हम्द करो। फिर कहते हैं अपने खुदा की असी गाइए किस तरह, ये है वो देश जहां हम असीर होकर चले गए, अपने खुदा ने गीत असी गाइए किस तरह, ये है बगाना देश, नाले हो जगह, उसी बेगाना देश, बेगाने जगह पर जो हमारी नहीं थी, वहां हम कैसे दिल से खुशी से गाएं। अब हम दिल से गा रहे थे, छू मुझे छू, पाकू मुझे छू। लोग कहते हैं देखो मैं शुमारी मुल्क से उनको लाऊंगा, जमीन की सरहदों से उनको जमा करूंगा, और उनमें अंधे और लंगड़े और हामिला और जच्चा सब शामिल हो गए, कमजोर जबरदस्त जोर वाले, उनकी बड़ी जमात यहाँ वापस आएगी। जहाँ कहीं भी दुनिया के कोने कोने में है, मैं
آپ کو واپس لاؤں گا. یہ خوشخبری دے دی یرمیہ نے اور وہ ان کو لایا. مقصد کا پر آپ کو پتا ہے؟ بولے 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 1948 میں اسرائیلی واپس آ گئے. ہمارے 1 سال بعد 1948 میں اسرائیل میں واپس آ گئے اور اب اتنی ترقی انہوں نے کی. ہمارے پاکستان کے بننے کے 1 سال بعد خدا نے ساری دنیا سے لے آیا, وہاں اکٹھا کر دیا, اتنی ترقی کی. آج پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہی ہے. اتنی تجارت ہم کے پاس, اتنا بزنس ہم کے پاس, اتنا دماغ خدا نے دیا, اتنی خوبصورتی خدا نے حسن ان کو دیا, وسائل دے دیے. کیوں؟ نیچے کی ارادہ مسمم ارادہ کہ ہم نے ترقی کرنی. ایک دوسرے کو گرایا نہیں, انہوں نے ایک دوسرے کو اٹھایا. بقی کو خدا نے بچا لیا اور کہا اب گاؤ, حمد کرو, تعریف کرو, تعظیم کرو, سب اکٹھے ہو جاؤ. لیکن میں آپ کو وہاں لایا ہوں, لاؤں گا. روتے اور مناجات کرتے ہوئے وہ آئیں گے, میں ان کی رہبری کروں گا, میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوک کر راہ راست سیدھے رستے چلاؤں. میں آپ ہم ٹیڑھے رستے میں مٹی کو کمہار جیسے ہاتھوں میں اپنے سنوارے, یوں ہی کلام خدا گوندے ہمیں اور نکھارے. ہمیں نکھرنے کی ابھی ضرورت ہے. ٹیڑھے ترچھے ہم, وہ مٹی تمہارا پھینک نہیں دیتا, نہیں, اسی کو لیتا ہے, خوبصورت برتن بنا دیتا ہے. یہ خدا کے کام. روتے ہوئے, مناجات کرتے ہوئے, شکر گزاری کرتے ہوئے میں خود ان کی رہبری کروں گا, میں خود رہنمائی کروں گا ان کی, ان کو پانی کی ندیوں کی طرف لے جاؤں گا, راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائے. کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور ابراہیم میرا پہلوٹا ہے. کبھی اس پہ غور کرنا شاید, میں نے بڑا کیا. میں نے کہا یہ ابراہیم تو 12 قبیلوں میں تھا ہی نہیں, یہ پہلوٹا کس طرح بن گیا؟ غور سے دیکھیں اپنی بائبل, میں پڑھ رہا ہوں, پڑھا کرے گا آدمی. میں اسرائیل کا باپ ہوں اور ابراہیم میرا پہلوٹا ہے. وہی اسرائیل تو یعقوب کا نام ہے, تو یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے تو ابراہیم کو نہ ہی. میں نے بڑا اس کو دیکھا. پھر میں نے اپنی ساری کتابیں دی. پھر وہاں سے پتہ چلا, سن لیں, کہ یہ ابراہیم میرا پہلوٹا یہ ہے کون؟ بقیہ میں سے جو بچ گیا. یہ ابراہیم یعقوب کے بیٹے یوسف کا بیٹا تھا, اس خاتون سے جو مصر سے مصری بیوی تھی یوسف. یعقوب کا سب سے چھوٹا بیٹا جس کو بیچ دیا گیا, جسے کنویں میں پھینک دیا گیا. خدا نے اسے سرفرازی دی, وہ خدا کے تابع رہا, خدا کے ساتھ ساتھ چلتا پھرتا رہا. اس پہ آزمائشیں بھی بڑی آئیں, بڑی مشکلات میں سے گزرا, ایمان میں قائم رہا. ڈاما ڈولنے کو جوان تھا, خوبصورت بھی تھا. اور اس کا نام ہے دورہ خالد. کیا نام ہے؟ کیونکہ خدا نے اس کو کہا ہے میرا پہلوٹا ہے. یہ یوسف کی مصری بیوی کا دوسرا بیٹا تھا, پہلا بیٹا نہیں تھا. اور یعقوب نے جب برکت دینی تھی بڑے پوتے کو, منسی کو, تو یوسف پاس کھڑا تھا, تو منسی کی بجائے یعقوب نے ابراہیم کے سر پر ہاتھ رکھا, اس کو برکت دی. یہ بچی کے بھائی کا نام ہے ابراہیم, میرا بڑا سا دوست ہے, نام ہی ایسا ابراہیم. وہ یوسف کہتا ہے کہ ڈیڈ غلطی لگ رہی ہے آپ کو, یہ ابراہیم ہے, یہ منسی ہے. کہتا نہیں, میں نے یہ برکت ابراہیم کو دیا. میں نے چھوٹے کو بڑے پر فوقیت دے دی ہے, چھوٹے کو بڑا بنا دیا ہے. خدا آپ کو چھوٹے کو بھی بڑا بنا سکتا ہے اگر آپ اس کے تابع رہیں, اگر آپ اس کے من پسند ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو آلودگی سے بچا کر رکھیں, اگر آپ ایمان میں مضبوط رہیں, تو خدا نے
इब्राहिम को जो छोटा था बड़े पर फूकिया दे दी, उसको बड़ा बना दिया, उसको बरकत दे दी। इब्राहिम के सर पर हाथ रखा, उसको बरकत दी और फिर कहा ये मेरा कहलौटा है। कहलौटा था नहीं, वो कामों से बंदा बनता है। इसलिए मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे दरखास्त करता हूँ, आप अगर इस समाज में, इस दुनिया में बड़ा बनना चाहते हैं, पहले छोटा बने। और ये अख्तियार कौन देता है? इंसान नहीं। ये जो इब्रानियों के खत की चंद आयतें हैं, 3री आयत पढ़ूंगा और इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। मेन ग्रोथ मर्ज जाए, 4थी आयत, और कोई शख्स, वो किसी बड़े का बेटा हो, किसी अमीर का हो, किसी सियासी लीडर का हो, किसी मजहबी लीडर का हो, कोई शख्स अपने आप ये इज्जत अख्तियार नहीं करता। कई दफा लोग बड़े सहन कर रहे हैं, पादरी सारा मुलाजिम है, नो बिल्कुल नहीं। ना अपने दिल में ये समझे ये बात, आप गलत सोच रहे हैं, आप बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसको कहा ऐसी तैसी तेरी, क्यों कहा भाई? आपको नहीं पता ऊपर बैठा हुआ जिसने अख्तियार दिया, वो तेरी ऐसी तैसी कर देगा, तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा तुझे। फिर पढ़ने लगा, आज गौर से सुन लें, तरह करें। और कोई भी शख्स वो बिल्कुल छोटा है आपकी नजर में, उसकी कोई इज्जत नहीं है, बीए भी नहीं है, जैसे अंदर था लोग उसको कुछ नहीं समझते, यीशु मसीह की नजर में बड़ा था। कोई शख्स अपने आप ये इज्जत अख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। ये खुदा की तरफ से होता है, आपने उसकी ताबेदारी करनी है, आपने उसकी इज्जत करनी है। अपने आप को ना समझे कि मैं बड़ी चीज हूं, आप कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं खाक हूं। खाक मुट्ठी में लेकर कब्र में न करा तो कहता है कि दुनिया और लोग जिनके अंदर मगरूरी है, वो गुरूर कहाँ गया? खाक कब्र की मुट्ठी में लेकर सोचता कि दुनिया में रहते हुए मेरे अंदर जो गुरूर था वो कहाँ गया? खाक में। इसलिए मेरे अजीजों, कोई शख्स अपने आप इज्जत हासिल नहीं कर सकता, अख्तियार खुदा देता है जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया जाए। इसी तरह मसीह ने भी, यीशु मसीह ने भी सरदार कायन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी, यीशु मसीह को भी उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू बल्कि सदक के तौर पर अबल तक का है। मलके सदक कौन? लोग लिखते हैं अपने नाम के साथ मलक ना, मैं यार आप नहीं लिखते, आला मलक में यार आप है, मैं यार आप है। तो शाही कहने का फिरका बन गया। फर्क जिदा कौन? मलके सदक है कौन? क्या लिखा है यहाँ पे? ये मलके सदक सालिम का बादशाह था, खुदा ताला का काहिर हमेशा ही कायम, हमेशा कायम रहता था। और जब इब्राहिम बादशाह को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाहिए। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दर्जे की भी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह है, हम इसके रास्तबाजी का बादशाह, फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप, बाप नहीं, बेमां, माँ भी नहीं, बेनसब, कोई असब नसब नहीं, ना उसकी उम्र का शुरू, ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबिह है। ये है मलके सदक, ये है काहिन, ये है खुदा का खादिम। और यीशु मसीह ने भी यही सूरत अख्तियार कर दिया, कहा कि मैं खिदमत करवाने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए। काश मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए, समाज में रहते हुए, खानदान में रहते हुए, बरादरी में रहते हुए, रिश्तेदारों में रहते हुए खादिम बने, ताकि खुदा छोटे को बड़े पे वो खुदा इस्लाम की वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम दुआ मांगे, चंद अल्फाज में काम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें।
आप में से कोई भी दुआ कर सकता है, कोई भी चंद अल्फाज में छोटी दुआ की शुक्रगुजारी कीजिए कलाम की। हमारे लिए मुश्किल और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म से एकदम हमारी रूहानी आलूदगी जिस्मानी आलूदगी हम दूर कर देते हैं, लेकिन रूहानी आलूदगी दूर नहीं करते। इस तरह से हम सबको इस बात को ठीक दे कि हम तुझ मेरा कर सकते गुजारे और तेरे नाम को जब जलाल देने का प्रयास करें। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे आपको एक नाम से समारोह के ज़बूर नंबर 31 में मेरी आशा तेरे में। तेरी आस
बाप हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने शुक्रगुजारी दरख्वास्तें मन्नतें मनजातें तेरे हुजूर गुजार सकें। अपना हाथ बढ़ा सजे की तकदीस कर, अपने लोगों को रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल कर, हाथों की कमाई में बरकत, रोटी पानी पर बरकत डाल, मुश्किलात से, परेशानियों से, दुखों से, बीमारियों से, डेंगू वायरस से, कोरोना वायरस से, खसरा की बीमारी से सबको बचा करना रख। आने वाले वक्त में तेरे खुशियाँ दे, सभी की तकदीस कर, ताकि ये रुपया पैसा तेरी जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए, ईशा की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जाए। खुदा बाप बेचे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। शायरबानी मुल्क के हुक्म डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट, बिशप ऑफ प्राइवेट, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान और चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए सारी कलीसिया के लिए, बिशप ऑफ कराची बलूचिस्तान के लिए, बिशप फ्रेडरिक जॉन के लिए तेरा शुक्र अदा कर। इस वास्ते रिश्तों और मुकर्रम रिश्तों और खुदा सवानी ग्रुप के साथ देता है। सबने बोल रही वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जब इंसान की तरफ अपने कोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर चढ़ाकर को जहान के गुनाहों की पूरी कामिल काफ़ी कुर्बानी नज़्र और माफ किया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, परेशान लोगों पर रहम कर, अपनी अलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं करना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया है। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, नाम देता हूँ सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे उन्हें जी खुदावंद की शमशीर ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया है, हम सब मिल कर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे लोग आज कर दे और हमारे किस्सों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने किस्से वालों को मुआफ़ करते, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि राइस में शामिल बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा उनके लिए इसके पास आने की दुआ मिल करके हैं, रहीम खुदा हम अपनी रास्तबाजी कर रहे हैं, बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेरे के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इससे लड़ाई करेंगे जो बड़े तेरी मेरे सस्ती करते हैं, लेकिन इनको वो खुदा है इसका खासा हमेशा रहना माना। इससे आए तेरी मुताबिक बख्श हम तेरे बेटे यीशु उसका गोश उसका वो सिखाएं और उसका खून इस वजह से पिए हमारे गुनाह का जिस्म होने इससे नहायत बेशकीमत बदल और खून से पाक साफ किया और हम उसमें और वो हम में हमेशा फंसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं वह हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है।
खुदा के बड़े यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है, आए हम भी अपना हाथ बढ़ा कर एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे। हम कहें एक दूसरे को कि खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदा आपको बरकत दे। और फिर हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करें कि इस वक्त हम खुदा के बदल और पूर्ण शरीक होने को हैं। हम खुदा के खादिम होते हुए हम आप सबको दावत देते हैं, जो लोग अपने आप को तैयार करके लाए हैं, जो खुदा यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हो। आए शुक्रगुजारी की दुआ। हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से पाए हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपनी जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजराते हैं, ताकि वो जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें खुद बख्श ताकि हम इंसान कम शक्ल ना बने, बल्कि अकल को जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूं कहीं एक और कामिल मसीह सीखें और इस ईमान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल वहाब जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल वहाब हमारे खुदा की। आमीन। खुदा समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कार मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।